Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is, the right to a speedy trial is a dash. Constitutional right, fundamental right, legal right or none of the above. त्वरित सुनवाई का अधिकार एक डैश है. संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फंडामेंटल राइट. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार. The right to a speedy trial is recognized as a fundamental right under the Constitution of India. It stems from Article 21 of the Constitution, which ensures the right to life and personal liberty. त्वरित सुनवाई के अधिकार को भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है. यह संविधान के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न होता है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है. Next question. Under which article of the Constitution of India can a writ of habeas corpus be filed? Article 32, Article 14, Article 21 और Article 19. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 19. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 32. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32. The writ of habeas corpus can be sought under Article 32 of the Constitution of India. This article grants the right to constitutional remedies, enabling individuals to directly petition the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights, including the right to personal liberty. Moreover, a habeas corpus writ can also be filed under Article 226 in the High Courts of India. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है. यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है. इसके अलावा भारत के उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद 226 के तहत भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन 82 of the Code of Criminal Procedure primarily deals with which aspect? Sentencing, property attachment, proclamation for absconding persons और बेल प्रोसीजर्स. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सजा सुनाने से, संपत्ति कुर्की से, फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा से या फिर जमानत प्रक्रिया से. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोक्लामेशन फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन्स. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा से. Recently, in the case of Fayyaz Abbas versus State of UP, the Allahabad High Court ruled that only the property owned by an absconding individual can be attached, not the property in which they reside. Section 82 of the Code of Criminal Procedure primarily deals with the process of proclaiming a person as an absconder. This section has been replaced by Section 84 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. हाल ही में फैयाज अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल फरार व्यक्ति के स्वामित्व वाली संपत्ति ही कुर्की की जा सकती है, ना कि वह संपत्ति जिसमें वह रहता है. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को फरार घोषित करने की प्रक्रिया से संबंधित है. इस धारा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग सेक्शन 34 टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड? 1 year, 9 months, 6 months और 3 months.
मध्यस्थता निर्णय को रद्द करने के लिए धारा 34 को लागू करने की समय सीमा क्या है? 1 वर्ष, 9 महीने, 6 महीने या फिर 3 महीने? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 3 months. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 महीने. Recently, in the case of Krishna Kumar and another versus Shakuntala Agency Private Limited, the Delhi High Court ruled that Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act cannot be misused by a party to avoid participating in arbitration proceedings. Under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, the application must be made within 3 months from the date on which the party making that application received the arbitral award. हाल ही में कृष्ण कुमार एवं अन्य बनाम शकुंतला एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 का दुरुपयोग किसी पक्ष द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने से बचने के लिए नहीं किया जा सकता है. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन उस तिथि से 3 महीने के भीतर किया जाना चाहिए जिस दिन आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता निर्णय प्राप्त हुआ था. Last question is, under Section 14 of the POCSO Act, whoever uses a child for pornographic purposes shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than dash 5 years, 3 years, 10 years और 2 years. पॉक्सो अधिनियम की धारा 14 के तहत जो कोई भी किसी बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है उसे कम से कम डैश अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी. 5 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 2 वर्ष. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 5 years. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 वर्ष. Under Section 14, subsection 1 of the Protection of Children from Sexual Offences or POCSO Act 2012, anyone who exploits a child for pornographic purposes is subject to a prison sentence ranging from a minimum of 5 years to a maximum of 7 years along with a fine. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 14(1) के तहत जो कोई भी अश्लील उद्देश्यों के लिए किसी बच्चे का शोषण करता है उसे न्यूनतम 5 साल से अधिकतम 7 साल तक की जेल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है. Now is the time for practice question. Under which procedural rule can a matter of public importance be raised in the Lok Sabha? Calling attention procedure, discussion under Rule 193, subsidiary motion और adjournment motion. आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न. लोकसभा में सार्वजनिक महत्व का मामला किस प्रक्रियात्मक नियम के तहत उठाया जा सकता है? ध्यान आकर्षण प्रक्रिया, नियम 193 के तहत चर्चा, सहायक प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव. Send the answer of this question in the comment section. Stay tuned for the next episode. Thanks for watching. इसका उत्तर हमें comment section में ज़रूर भेजिएगा. मिलते हैं अगले एपिसोड में. धन्यवाद.